हाँ, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। ये स्लाइड करना था, यहाँ से ये करना। आप क्लाउड पे कर दूं? ये मैंने इसको पीडीएफ में फॉन्ट साइज बड़ा करके किया, इसलिए मैंने 5-7 मिनट पहले ही ऑफ कर दिया था, क्योंकि मुझे देखा था दिख रहा कोई मसला तो नहीं होता 5-10 मिनट का। क्या से तो टाइमिंग सही है ना। हाँ, नहीं मतलब 7 मिनट लगते थे पिछले लेक्चर को, मैंने ऑफ कर दिया। आप क्या करना था? आप ये फिर भी छोटा ही है, मैंने तो इसको 18 साइज किया है। वही दिन के हिसाब से आया है यहाँ पे कोई है नहीं यहाँ पे तो। आप मैसेज करते हैं 5 स्टूडेंट्स हो गए। अच्छा, इधर से ये पता चल जाता। Oh, very good, boys. Hello, boys. Now you're happy. You have so many leaves. So I would like to welcome you in the new sessions, new third year class. Hope everyone is happy. Hello. Kainat Nawaz present, ma'am. Maria Tahir. So today I will introduce you the course outline of the Culture, Health and Society. I will teach you this subject. So first of all, we will learn about what are the objective, what objective are necessary to meet the Culture, Health and Society course. So here are the course descriptions. I would like to tell you about what content and what are the objective you need to meet in this course outlines. So are you really very happy and enjoying with new sessions? After so many months, you are able to connect with your educations, your college. Fatma Snaula, how are you? Mariam Mukhtar. Alishba present, ma'am. Okay, so let's start this course outlines of Culture, Health and Society. So first of all, I would like to tell you about the course descriptions about the Culture, Health and Society. Course description: this course introduces learner to human interactions and its impact on individuals and group behavior. It also introduces learner to the field of socio-culture anthropology. It focuses on the explorations of value, belief, practice related to health and illness in general and among specific group of people in Pakistan. The focus on the analysis of the interrelatedness of the culture, society, and healthcare delivery in Pakistan. This course promotes the explorations of transcultural nursing concept, which will be promoted in the clinical setting. So according to this course description, that because we live in the community, we live in the society, and being a part of the society, we must know and have how to interact, how to behave, how to what problem are related to health that we every day facing in our society, and we how to teach people regarding specific problem. So इसमें हम सारी ये चीज़ें देखेंगे कि इस कोर्स का मकसद यही है कि हम इसको
जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पाकिस्तान है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कल्चर, दे हैव अ डिफरेंट कल्चर, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, यू नो, according to our 4-5 province, we have a different trend and culture. So according to the cultures, we can give them the knowledge, we can treat during the illness and sickness while they are admitted in the hospital, so we can treat according to the cultures, so that they so we will fulfill their बेसिक नीड, ताकि हम उनको उनके मुताबिक ट्रीट कर सकें. द कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द यूनिट्स ऑफ सोशल कल्चर स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस. इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, आप क्या करें? वी विल एबल टू आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर किस तरह का और इनके क्या फंक्शन है. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ ग्रुप. हम फिर उस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे और इनके ग्रुप पैटर्न्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे. डिस्कस द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमारा क्या रोल होना चाहिए, दैट शुड बी वी विल डिस्कस इन द डिटेल. सो डिस्कस द एक्सप्लेन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान. हम पाकिस्तान की सोशल डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे, इसके कंपोनेंट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो हम वी विल बी एबल टू जो है हो जाएंगे, ताकि हम पाकिस्तान के सोशल डेवलपमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकें. एंड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर, सोसाइटी एंड हेल्थ. एनालाइज हेल्थ रिलेटेड नॉलेज, बिलीफ, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ द वेरियस सोशल कल्चरल ग्रुप इन पाकिस्तान. Seventh है appreciate the role of society and the culture in recognizing health system utilizing. Discuss the applications of transcultural nursing concept when providing nursing care to the client. Discuss relevant social issue and suggest method to facilitate change in where necessary. So these are the course objective. We will meet in this after the completion of this course. The teaching learning strategy will be लेक्चर होगा, ग्रुप डिस्कशन है, सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज होंगी. मे बी यू आर फेमिलियर विद द सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग, एंड इफ यू डोंट नो, आई विल टीच यू इन टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज होगी. बुक प्रेजेंटेशंस भी हम करा सकते हैं. बुक प्रेजेंटेशन के आप पूरी बुक में से आप उनको बताएंगे इस टॉपिक के बारे में, वो खुद से स्टडी करेंगे. रोल प्ले है, पेपर राइटिंग है. एवेल्युएशन जो क्राइटेरिया हम इसका है वो ये है कि ग्रुप प्रेजेंटेशन ऑन पाकिस्तान कल्चर, दैट विल बी द प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया, कि हम ग्रुप को प्रेजेंटेशन देंगे ताकि पाकिस्तानी कल्चर के पर्टिकुलरली जो प्रोवेंस हैं उनके मुताबिक जो है, जैसे हम क्या कर रहे होते हैं, हम आपको देखा कि हम इसके जो डे भी कल्चरल डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं. हम डिफरेंट प्रोवेंस को जो है उसकी जो है अकॉर्डिंग टू कल्चर के मुताबिक हम उसके ट्रेडिशंस को सीखते हैं, उनकी वैल्यू और उनके जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो भी हम लर्न करते हैं. इंक्लूडिंग हेल्थ, बिलीफ एंड प्रैक्टिस, होम रेमेडीज वो क्या बनाते हैं. आपने देखा जब हम स्टॉल जो होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं, तो आपने देखा डिफरेंट कल्चर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कि उनके क्या ट्रेडिशंस है, क्या उनकी रेमेडीज हैं, होम रेमेडीज क्या है, उनके डिफरेंट कल्चर, उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर को हम उसमें डिस्प्ले करते हैं. पेपर ऑन करंट इशू 30%, फाइनल एग्जाम आपका 40% होगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट 1 ऑब्जेक्टिव. यूनिट 1 में हम सबसे पहला जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सोशो कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम सोशो कल्चर के बारे में, पहले तो हमें जब हम सोशियोलॉजी को समझेंगे, सोशियोलॉजी है क्या, कहाँ से इसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे. फर्स्ट लेक्चर जो होगा इसको हम इसके डिटेल में सीखेंगे. सोशियोलॉजी, सोशो कल्चरल चीज़ें क्या है और एंथ्रोपोलॉजी कंसेप्ट क्या है. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस सोशियोलॉजी एज अ साइंस, इट्स नॉलेज एंड मेथड, and discuss the importance of socio-cultural anthropology and its relation to health. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के बारे में हम सीखेंगे. फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर देखेंगे, कल्चर क्या है, कल्चर के डिफरेंट जो टाइप्स है वो क्या होती हैं. हम इसके ऊपर भी बहुत डिटेल है. ईच यूनिट कंप्राइजेज ऑफ वेरी डिटेल लेक्चर्स, एंड आई विल इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल डिस्कस विद यू पीपल. Explain the concept of society at the micro and macro levels. ठीक है, ये भी एक कंप्लीट लेक्चर है. इन सारे चारों यूनिट पे हम सेपरेटली लेक्चर्स इसके बारे में सीखेंगे. लेक्चर में सेपरेटली इसके बारे में सीखेंगे. यूनिट 2 जो है ये है सोशल इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप, सोशलाइजेशंस,
ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, ग्रुप क्या होते हैं। जब इस टॉपिक के हम ईच कंपोनेंट को देखेंगे तो वी विल हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। Delineate the difference among social institutions, for example, family type, functions, marriage, caste, family, relationship, divorce। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा सकता है। फातिमा, खुदा अच्छा करेगा, खुदा अच्छा करेगा और शायद हमें खुदा होपफुली अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। आफ्टर योर एग्जाम यू विल बी एबल टू ज्वाइन योर नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, और हमारी खुदा से दुआ है क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि देखिए, अगर आप लर्न नहीं करेंगे, क्लासरूम लर्निंग बहुत अच्छी होती है। आप सिर्फ जो है बुक से या टेक्स्ट से ही नहीं सीखते, या आप वर्डिंग से नहीं सीखते, आप एक दूसरे से, टीचर से कि हमें कैसे बिहेव करना है। हमारी बहुत सारी चीज़ों की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, ऑनलाइन में तो हम सिर्फ, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनके, लेकिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सेंसेस। आप देखें ना कि आप तो यहाँ पे हेयरिंग और अपनी ऑडियो और विजुअल यूज़ कर रहे हो ना, लेकिन इसके साथ आपकी बाकी सेंसेस भी इसके साथ चल आपको काम करना चाहिए ताकि आपकी डिफरेंट एंगल से लर्निंग हो। आप अपने पीयर से सीखते हो, आप फेलो से सीखते हो, टीचर से सीखते हो, एक दूसरे कोलीग से सीखते हो, सीनियर जूनियर से सीखते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे उसने देखा कि सोशल ग्रुप की बात की है, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप, दुआ किया करो। आप लोगों की बड़ी छुट्टियां होगी। जबलून को, जबलून तुम्हारी बड़ी छुट्टियां हो गई हैं। जबलून पतरस बहुत खुश होगा, है ना। जबलून को बहुत छुट्टियों का शौक था। देख लो, तुम्हारी खुदा ने ख्वाहिश पूरी कर दी है। So delineate the difference among social institutions. For example, फैमिली क्या होती है, कितनी टाइप होती है, फैमिली के फंक्शन क्या होते हैं, मैरिज क्या है, मैरिज के क्या रूल होते हैं, किस तरह की होती हैं। फिर कास्ट के बारे में सीखेंगे, फैमिली क्या है, कास्ट, फैमिली रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और डाइवोर्स क्या और किन सिचुएशंस में आप दे सकते हो, किन सिचुएशंस में आप नहीं दे सकते। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ, सुपरस्टिशंस, ये हम सीखेंगे। रिलीजियस बिलीफ में सुपरस्टिशंस बिलीव है, जैसे आपको पता, सुपरस्टिशंस बिलीफ के बारे में जानते हो ना। अच्छा, चलो फिर दुआ करो जबलून, हमारा जल्दी से कॉलेज खुल जाए। ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी एक दूसरे को देखें। वी आर रियली गेट वेरी बोर्ड अप विदाउट यू पीपल, वी आर मिसिंग यू रियली। सो रिलीजियस बिलीफ है, सुपरस्टिशंस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप है, लीगल सिस्टम है, रिक्रिएशन है, एजुकेशनल सिस्टम है। डिस्क्राइब द ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। चलो, गॉड ब्लेस यू जबलून। So describe group, in-group, out-group, primary group, and secondary group. That is comprises in the second unit of culture, health and society. So reference group है, caste है, ethnic group है। ये subject बहुत lengthy है और आपको पता है इसके there is so many unit। जी सर, इनकी तो लगा दी थी, ये लग गया। हाँ जी, ये थर्ड ईयर है। ये किन की लगाई है? ये मैं क्या लिखूँ, कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी। ठीक है, सो यूनिट 3 में हम लर्न करेंगे कल्चर एंड हेल्थ, बिहेवियरल सोशलाइजेशन। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन इलनेस। ठीक है, कल्चर का जो इफेक्ट होता है वो इलनेस पर कैसे होता है। बहुत सारे हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं दैट रियली अफेक्ट आवर हेल्थ। कल्चर शॉक क्या है एंड मैल एडजस्टमेंट कैसी होती है। कल्चर शॉक के बारे में हम सीखेंगे। कल्चर शॉक के डिफरेंट जो हैं वो फेसेस हैं, उसको हम सीखेंगे। डिस्क्राइब सिकनेस एंड सिक रोल, बर्थ एंड डेथ।
Discuss cultural variation in symptom. How do the sick behave. ठीक है, हम के डिफरेंट कल्चर वेरिएशन के सिम्टम को भी देखेंगे और वो किस तरीके से सिकनेस में बिहेव क्या करते हैं और क्या स्पेसिफिक बिहेवियर होता है. रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लायंस इन डिफरेंट कल्चर्स. Describe the food taboos in different cultures and define behavior in group status, deviance and alienations and socializations. ठीक है, that is unit 3 and it has a 6 objectives. Or each objective has a separate lectures we will discuss in detail. And unit number 4 जो है पाकिस्तानी सोसाइटी कल्चर सोसाइटी पाकिस्तान a culture perspective briefing on group. At the end of this unit, learner will be able to discuss the origin and development of Pakistani society. कि हम क्या करेंगे, इसका जो ऑरिजिन और डेवलपमेंट, पाकिस्तान सोसाइटी का ऑरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुई है इसके बारे में हम लर्न करेंगे. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक प्लेस. स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे हुई. डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली यूनिट ऑफ सोशल लाइफ इन पाकिस्तान. एंड जो है फोर्थ ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द सोशल नॉर्म एंड मोर्स एंड डिस्क्राइब द कल्चर इन पाकिस्तान. हम पाकिस्तान के कल्चर को स्पेसिफिकली देखेंगे. रिव्यू ट्रेड नॉर्म्स मोर्स एंड फोकवे ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ पाकिस्तान. नॉर्दर्न एरियाज एंड WFP एरियाज, ये भी आपको पता है डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान है. पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है. सो पाकिस्तान के प्रोविंस का भी तो आपको पता है. ठीक है. Unit 5, it comprises of so many objectives as well. Concept and perceptions of health, illness and disease healing system. At the end of this unit, learner will be able to describe the concept of health, illness and disease. इस यूनिट में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस एंड डिजीज, और इसको फर्दर जो हम है वो भी डिटेल में लर्न करेंगे कि इसका कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अफेक्ट होता है. डिस्कस परसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इन डिफरेंट सोसाइटी एंड कल्चर. डिस्कस हेल्थ एंड डिजीज एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर. नंबर 4 पे है डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट हीलिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिशनर्स. Describe basic principle of Eastern and Western medicine. Identify issues of integrations of traditional healing practice and modern medicines. So for unit number जो 6 है उसमें हम देखेंगे populations and demography. ठीक है, population and demography के बारे में भी हम लर्न करेंगे कि ये क्या होती है. At the end of this unit, learner will be able to describe the demography, study the population of Pakistan. ठीक है, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे. डिस्कस द पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होते हैं. एनालाइज द फिनोमेना ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशंस. ठीक है, सो हम इसमें इसके बारे में लर्न करेंगे. सो यूनिट नंबर जो 7 है उसमें है ट्रांस कल्चरल कॉन्सेप्ट एंड असेसमेंट. ट्रांस कल्चरल यानी कि क्रॉस कल्चर, यानी एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बारे में भी हम सीखेंगे. एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस कल्चर नर्सिंग. ठीक है, कि ट्रांस कल्चर नर्सिंग क्या है. एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ट्रांस कल्चर नर्सिंग. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चरल असेसमेंट. नंबर 2 है इंटीग्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस कल्चरल नर्सिंग केयर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. आइडेंटिफाई नर्सिंग फ्रेमवर्क एंड थ्योरी एप्लीकेबल टू ट्रांस कल्चरल नर्सिंग. Examine culturally related issues across the lifespan. Explore the role of family. Explain the role of family and cultural practices related to the developmental stages. So unit 8 special issues in the delivery of transcultural nursing. Special जो है issues क्या होते हैं while you are delivering the transcultural nursing. At the end of this unit, the learner will be able to assess cultural specific aspect of pain experience. ठीक है, and discuss various treatment for pain home remedies. ठीक है, स्पेशल जब ऐसी नर्सिंग केयर में जो है आप स्पेशल केयर कैसे डिलीवर कर सकते हो.
while you are special issues कौन कौन से हो सकते हैं while you are delivering the transcultural nursing, ठीक है. So explore dietary belief and practices of client from different cultures, identify strategy to facilitate dietary change. So demonstrate an understanding of health maintenance and disease prevention model. Utilize health belief model in client care. हेल्थ बिलीफ मॉडल्स को यूज करते हुए हम क्लाइंट को कैसे जो है केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें हम हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. So identify reason for non-adherence to treatment, explore religious belief and practice related to the prevention and healing in illness. Fourth है demonstrate an understanding regarding attitude of society toward the stigmatized disease, discuss societal knowledge regarding the infectious diseases, and discuss society attitude toward the infectious diseases, ways of enhancing acceptance of individual with stigmatized disease. Describe spirituality and its relationship with the health and illness, and differentiate between healing and cure. Identify different method of spiritual healing. Different method भी इसमें देखेंगे कि healing में क्या क्या method जो होते हैं वो use किए जाते हैं, ठीक है. सो जो इसका यूनिट नंबर 9 है, इसमें है सोसाइटल परसेप्शन टुवर्ड द जेंडर एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है. इसमें जो जेंडर रोल है उसके बारे में. साइमा इट्स अ होल. सो इस यूनिट नंबर 9 में हम देखेंगे सोसाइटल परसेप्शंस क्या है टुवर्ड द जेंडर एंड डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड. हम इसके बारे में डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है मैंने इस पे. डिस्क्राइब, इसमें देखें एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब जेंडर एज अ सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, analyze personal and cultural perception toward genders, discuss societal perception and status regarding men and women, discuss the role and status of women in Pakistani society. इसमें जो वुमेन्स का रोल क्या है और evaluate societal attitude toward factor enhancing women status. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सोसाइटी में वुमेन के स्टेटस में जो है कौन से फैक्टर जो वो इंटरफेयर करते हैं. नंबर 10 पे है ह्यूमन राइट्स. At the end of the learner will be able to recognize the basic human right, define the human right, appreciate the importance of human right, and conceptualize right-based approach to health, identify nurse role in different client-centered healthcare approach, discuss the concept of poverty, describe poverty and related theory, discuss poverty distributions and identify the impact of poverty in Pakistan society. And number 10 पे explore the relationship between the poverty and health. इसमें हम पॉवर्टी के बारे में भी देखेंगे, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट क्या है, इसके बेसिक ह्यूमन राइट क्या होते हैं, इसके टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और उसके बाद इसमें कौन कौन से हम अप्रोचेज यूज़ कर राइट अप्रोचेज जो हैं राइट बेस्ड अप्रोचेज टू हेल्थ में हम कैसे इसको कॉन्सेप्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, नर्स का रोल क्या होता है, ठीक है. और इसके बाद पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी की थ्योरीज पढ़ेंगे, पॉवर्टी कैसे पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये ऑल सारे ऑब्जेक्टिव हम इसमें जो है वो मीट करेंगे. सो क्या यूनिट नंबर 11 और वेदर 12, हाँ जी 11 सॉरी. सो यूनिट नंबर 11 जो है माइग्रेटिंग फैमिली एंड हेल्थ. At the end of this unit, learner will be able to describe cultural changes and process of change, determine factor influencing immigrations and immigrations. जो I वाला है और E वाला है, ठीक है, ये विद आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है, ये दोनों में जो ये दो डिफरेंस है. इमिग्रेट और इमिग्रेशन. एनालाइज स्टेजेस
of culture shock. Discuss changes of immigrant populations. Discuss current जो है world affair and their influence on the human right and health in particular. Discuss the local health system framework and its efficiency in meeting the need of the populations. So unit number 12 जो है social issues after disasters. कौन कौन से सोशल इश्यूज होते हैं जब भी कोई डिजास्टर होता है, नेचुरल हो जाए या मैन मेड डिजास्टर. सो वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट type of disaster, whether it's a man made or natural disaster. और आप इसको डिफरेंट टाइप भी देखेंगे कि डिजास्टर कितने टाइप का होता है और इसके क्या इफेक्ट होते हैं आफ्टर डिजास्टर, इसके क्या क्या साइकोलॉजिकल तौर पर इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो नीचे जो ये दिया गया टॉपिक है डेट के साथ, इसका हम इसका प्लान भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो जितनी ऊपर मैंने आपको डिटेल बता दी. हाँ, यस अर्थक्वेक है, यस अर्थक्वेक जो है वो क्या है, नेचुरल डिजास्टर है ना. जैसे बॉम्बिंग है, ठीक है, ये क्या है, यस फातिमा, सुनामी, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं. ठीक है, टर्नेडो है, ठीक है, टर्नेडो देखा है कभी, जो समंदरों में आता है, पानियों में आता है टर्नेडो. यस, ये नेचुरल डिजास्टर है. जैसे टर्नेडो है, टर्नेडो आपने देखा एक बहुत बड़ा ऐसे वो बनता पानी के अंदर से. जी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम वेरी इंटरेस्टिंग है, बट इट इज़ वेरी टू मच लेंथी सब्जेक्ट है, ये बहुत लेंथी है, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है. ठीक है, वो क्या होता है आज देखना, जरा नेट पे सर्च करके देखना, आपको इसके इमेज में पता चल जाएगा टर्नेडो क्या होता है. ये पानी के अंदर, समंदर के अंदर से उठता है और इतना जोर से, मोस्टली टर्नेडो यहाँ पे सी एरियाज के साथ जो होते हैं ना वो ज्यादा फैक्टर होते हैं. जैसे आपने देखा जापान में, फिलीपीन में और जो सी के नजदीक एरियाज है ना, जो पॉपुलेशन है उनको ज्यादा ये हिट करते हैं और बहुत बैडली जो उसको हिट करते हैं. ठीक है, टर्नेडो बहुत खतरनाक तरीन चीज है, खुदा माफ करे. ठीक है, इस टॉपिक में जैसे टॉपिक है इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था, ये सारे एंथ्रोपोलॉजी है, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, हेल्थ एंड माइक्रो, ये सारे यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, गाइडलाइन हम इसकी पढ़ लेते हैं, ये सेम ही यूनिट है. ठीक है, यूनिट के नाम बस नहीं है, वो जरा डिटेल ऑब्जेक्टिव के साथ है. हाँ, हुरिकेन है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. जबलून इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना जबलून. अब मैं तुम्हारी टीचर, अब मैं तुम्हारी एडवाइजर नहीं होंगी ना, मैं तुम्हारी टीचर होंगी. ठीक है, तब मैं स्वीट स्वीट बातें किया करूंगी, अब मैं तुम्हें डांटने वाली बातें नहीं किया करूंगी. ठीक है, सेकंड ईयर में बस डांट पड़ गई है. मैन हवा या पानी के सुनामी भी है. So guidelines for the paper writing. So during the first few weeks on the course, identify and unresolved health or social issues that you may become aware of through any source and newspaper discussions, TV program, clinical and community setting. ठीक है, आपको फर्स्ट वीक फ्यू वीक्स में क्या करना, आपने अपने जो है अनरिजॉल्व हेल्थ इश्यूज को क्या करना होगा, आपने उसको टॉपिक को लेना है कि वो उसकी सोर्स क्या थी, कैसे न्यूज़पेपर में आपको पता चला. ये आपको जब भी आप कोई पेपर लिखते हैं तो आपने उसको किस तरीके से लिखना है, ये उसके लिए गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर पेपर राइटिंग. कि अगर आपने को बना रहे हैं तो अपने फ्यू वीक में हुआ है या उसमें आपने कैसे सुना, क्या सोर्स था, ऐसे पता चला, टीवी के जरिए पता चला, क्लिनिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग से आपको पता चला, तो आपने ये देखना. टॉपिक मस्ट बी करंट एंड ऑफ लास्ट 1 ईयर्स. ठीक है, आपने देखना कि वो क्या, जिस पे भी आप अपनी राइटिंग कर रहे हैं, पेपर राइटिंग कर रहे हैं, वो मस्ट बी जो होना चाहिए, करंट होना चाहिए, लास्ट 1 ईयर एंड हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड सोसाइटी एज अ होल. आपने देखना कि उसका सिग्निफिकेंट क्या अफेक्ट हुआ है होल सोसाइटी पे और ह्यूमन पे. ठीक है, यू मस्ट इन्फॉर्म योर फैकल्टी अबाउट योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट प्रायर टू द ड्यू डेट एंड द पेपर शुड बी लिमिटेड टू 1250 to 1500 वर्ड. ये इतने वर्ड का लिखा होना चाहिए. एंड द रेफर द अटैच्ड गाइडलाइन फॉर द पेपर राइटिंग.
सो पेपर राइटिंग क्राइटेरिया जो आपने से बताया, अपना नेम लिखें, टॉपिक का नेम लिखें, टोटल मार्क्स ऑब्टेन एंड परसेंटेज ऑब्टेन एंड जो भी आपने लिया, ठीक है। लर्नर डेवलप आउटलाइन शेयर एंड गेट feedback from the peers, title 3 topics, sentences and 3 supporting point and submit it to the faculty। इसमें introductions लिखेंगे। कभी भी आपने रिपोर्ट राइटिंग लिखी है ना, क्या करते हैं, सबसे पहले अपना टॉपिक लिखते हैं, फिर उसके बारे में इंटरेस्ट वो उसके इंट्रोडक्शंस लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश में पढ़ा होगा। So what is the confusion? Yes, this is I discuss with you people course outline of culture, health and society. So I give you the road map, where to go, where to start। ये आपका कोर्स आउटलाइन जो होती है वो आपको रोड मैप देती है, आपको पता चल जाता है कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। एटलीस्ट आपको पता चल गया है कि ये जो यूनिट है कंप्राइजेस ऑन 12, ये जो सब्जेक्ट है कितने यूनिट पर कंप्राइजेस है, 12 यूनिट पर, 12 यूनिट है इसके। एंड ऑब्जेक्टिव्स आर इन वेरी डिटेल। आपने देखा ये बहुत लेंथी है, ठीक है, इसको हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपकी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह वी विल अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप जब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होती है कि जब आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट योर क्लास बिकॉज यू आर न्यूली with me, your journey started is just in this year, so once you will get familiar, I will get familiar with you people, I will know what is your strength and what are your weakness and how to overcome your weaknesses। So no problem, I am here to guide you people। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, you can discuss with me and my expectation is to you people is please regularly attend the classes and do not make absent। Absent make so many प्रॉब्लम, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए प्लीज, क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर हैं, अगर आप अभी से इसके कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए क्लासेस के साथ साथ रहे, कोई भी क्लास मिस नहीं करना। देखिए ना, एक माइलस्टोन होता है, यानी स्टेप होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोसेस का एक स्टेप भूल जाओगे या आपका बिगिनिंग में ही आपने पार्ट नहीं, अपना हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं किया, तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टेप। इसलिए जब हम बात का शुरू नहीं समझते तो बात का आखिर भी नहीं समझ सकते। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। आपने प्रेजेंट रहना है और कोशिश करनी है। अब आपको घर पे बैठे सुकून से, अब सो के 9 बजे भी उठ जाए, सुकून से बैठे, लेट के लेक्चर ले लें, कैसे मर्जी ले लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। कंफर्टेबल रहें लेकिन क्लास जरूर अटेंड करें बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो है देखेंगे कि हम क्लासेस कब से ऑनलाइन यानी इन कैंपस क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट एंड प्लान ऑफ डेवलपमेंट मेंशन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सोशल कल्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ पेपर, प्लेस एंड priority in healthcare and social system। So relation to health and role as a nurse or member of the society, body, descriptions of issues, implication of issue discussed with reference to healthcare social system, details supported by relevant, careful, selected existence of knowledge or practice, challenge for the accuracy and applicability, rationalize for the long-term effect on health society, mention point of view, stand summarized करेंगे, idea expressed are original and innovative। जो ना आपका जो आइडिया होना चाहिए वो कहते हैं कि एक्सप्रेस करना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, इनोवेटिव फॉर्म। कंक्लूजन डालेंगे, की आइडिया समराइज करेंगे, ऑथर व्यू एंड रिकमेंडेशन एक्सप्रेस करेंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल पैराग्राफ सपोर्ट थीसिस एंड स्पेलिंग, पंक्चुएशंस एंड कैपिटलाइजेशंस। ये आपने इस बात का स्पेलिंग, पंक्चुएशंस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, पंक्चुएशंस कैसे लगाते हैं, कैपिटलाइजेशंस अभी आपने ख्याल करना है कि एक स्टेटमेंट के बाद जब नेक्स्ट आपने लिखनी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रूफ रीडिंग, एविडेंट आपने देखना है, ठीक है। सो दीज आर द रेफरेंसेस। वैसे तो इसके लिए मैं आपको बुक भी शेयर कर दूंगी, आई हैव अ सॉफ्ट कॉपी एज वेल, सो आई विल शेयर। एंड उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको सारा डाटा मिलेगा, सारे ही कल्चर, इसके लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी जाना पड़ता है, बुक भी देखनी पड़ती है, डिफरेंट बुक्स को पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक सोशियोलॉजी फॉर नर्सेज है, ये उसकी है, निशा क्लेमेंट की बुक है,
वो मैं आपको रेफरेंस इसका दिखा दूंगी, ठीक है। सो प्लीज आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कोर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी। Hope you get familiar with. So let me mark the attendance. Please do not leave. And मुझे attendance mark कर लेने दें, ठीक है। So I'm marking your attendance. Do not leave. So Zishan is also present. Zishan Fazal. अच्छा, मैं तो पील गा रही हूँ, किधर मैं कह रही करनी है। हनीजा, मरियम मुख्तार, रुआ, ऐसे ना भी मुझे आपके नामों से पता नहीं चलता। ये बड़ा अब्दुल हनान प्रेजेंट है, अलिशबा प्रेजेंट है, मुनीबा, मुनीबा तारिक, नबीला, मुबीन प्रेजेंट है, मरियम मुख्तार की होगी, साइमा, अफशा।
मतलब ठीक है, मैं बोलती हूँ प्लीज, अगर किसी का नाम आप बार बार ना लिखें क्योंकि कंफ्यूजन होती है, आप ऐसा करें कि मैं बोलती हूँ, फिर जिसका रह जाएगा ना वो मुझे बता दे, ठीक है? मैं नाम बोल रही हूँ आपका, प्लीज केयरफुली। रोल नंबर वाइज। अब्दुल हनान प्रेजेंट है, आपदा प्रवीण एब्सेंट है, आप आपदा प्रवीण की अटेंडेंस नहीं है। अरफा सियाब है, एमन फरद प्रेजेंट है, अलिशबा शाकिर प्रेजेंट है, अमारा कमर प्रेजेंट है, आमना सलीम प्रेजेंट है, अनीजा अकरम प्रेजेंट है, अक्सा आरिफ प्रेजेंट है या नहीं है? अक्सा आरिफ। सो अक्सा आरिफ जो है वो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है? मैंने देख लिया उसको, ठीक है? और अरीज सलीम प्रेजेंट है, अरीज फातिमा प्रेजेंट है, और अरूज फातिमा, अरीज सलीम, अरीज फातिमा एंड अरूज फातिमा, 3 आर प्रेजेंट। आतिका प्रेजेंट है। आयशा वाजिद का नाम मुझे नजर नहीं आया। आयशा वाजिद, आयशा वाजिद। सो आयशा वाजिद भी एब्सेंट है, ठीक है? आयशा वाजिद। बॉयज प्रेजेंट है, फातिमा, फायजा मुनीर जो है, फायजा मुनीर का नाम नजर नहीं आया। हाँ जी, फायजा मुनीर भी नहीं है, एंड फातिमा सनाउल्ला प्रेजेंट है, ठीक है? और हफ्सा कदीर प्रेजेंट है। जवेरिया मजहर, जवेरिया मजहर है? जवेरिया मजहर, इफ यू आर प्रेजेंट प्लीज शो मी योर रिस्पॉन्स। जवेरिया एब्सेंट है, ओके। और महरीन कौसर, महरीन कौसर, महरीन कौसर। हाँ, शी इज प्रेजेंट। महरीन कौसर, महरीन कौसर प्रेजेंट। ठीक हो गया। मीरब अशरफ, मीरब अरूज है, मीरब अरूज प्रेजेंट है, मीरब अशरफ।
So she is absent as well. Mira Baru जो है present है. Michelle Maria. Michelle Maria. Michelle Maria. Michelle Maria. She is absent as well. Michelle Maria. आप अपने मोबाइल पे आप लेक्चर ले रहे हो या फिर क्या नाम है, किस पे कौन सा यूज कर रहे हो? जवेरिया के बाद मेरा रोल नंबर कायनात नवाज तुम्हारी मैंने ऑप्शन लगानी है। तुम मुझे पता सबसे पहले प्रेजेंट थी हैं कायनात। कायनात तुम्हारा सिर्फ एक ही कायनात हो ना? कायनात नवाज नहीं पूरा लिखा, कायनात लिखा हुआ सिर्फ नाम। तो आप सिर्फ एक ही कायनात हो ना? ओके, सेल पे ले रहे हो, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात, अपना लिंक आराम से करो ऑन और आप अपनी क्लास ले सकते हो, वेरी गुड। सो सेल पे ले रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, गुड वे। स्विगी आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास? हाँ, आप अपना लिंक आपके जब पास होगा तो जब चाहे आप उस लेक्चर को खोल सकते हो, आप उसको रिव्यू भी कर सकते हो, ठीक है। जब किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना हो जो क्लास में टीचर ने बताया हो, आप दोबारा भी देख सकते हो, वेरी गुड। सो मारिया मुबारक का मैंने नाम लिख लिया। मुनीबा प्रेजेंट है? मुनीबा मैं जैसे जिस बच्चे का नाम बताऊंगी ना, उस बच्चे ने जल्दी जल्दी अपना नाम मुझे बताते जाना, ठीक है। मुनीबा प्रेजेंट, प्रेजेंट। नबीला रियाज प्रेजेंट। नबीला, नबीला मुझे बताया, नबीला प्रेजेंट है। नेहा, नबीला एंड नेहा। अलिशबा शाकर, यस, नबीला प्रेजेंट। नेहा, नेहा एंड निमरा खालिद, नेहा निमरा खालिद। नेहा एंड निमरा खालिद। नेहा नहीं है, निमरा खालिद जी। प्रियंका देवी, रानिका देवी कौन सी है? रानिका देवी, आर यू प्रेजेंट? रानिका देवी, रानिका नहीं है। ओके प्रियंका, तुम प्रेजेंट हो इसलिए कहती, जो नाम बोली ना प्लीज अपना रिस्पांस मुझे बताते जाओ, ठीक है। रिफत मुनीर, रिफत, जिल्पा, जिल्पा की लग चुकी है, जबलून की लग गई, उर्वा की लग गई, अफशान की लग गई, मरियम ताहिर की, कुरतुलैन की एंड जीशान की लग गई।
तैयबा साबिर है जो प्रस्तिश आपकी लग गई है। रजा मुझे शबनम परवेज और तहरीम मुदस्सर जो है इन दोनों का चाहिए। रमशा तुम्हारी लग गई है, साइमा अरशद की लग गई है, सारा अली की लग गई है। ठीक है, आप मुझे उसका बताएं प्लीज। रमशा तुम्हारी लग गई, मैंने तुम्हें स्किप नहीं किया। रिफत मुनीर का मुझे बताएं। रिफत मुनीर, शो मी योर रिस्पांस। एंड नेहा रिफत, शबनम परवेज and Tahreem Mudassar and Taiba. I have a little bit confusion in the 3-4 names. So if you are present, show me your response. Mariam Niab. मोहम्मद रजा की मैंने लगा दी, रमशा की लगा दी, नौरीता की लगा दी। नौरीता तुम्हारी लगी हुई है। नेहा रह गई है, रिफत मुनीर है, नेहा रिफत